Before we come to editorial, let's discuss some of the common errors based on the same editorial. The very first question you can see over here is the bench pointed out that closing a route of entry for women to join the army is discriminatory. You will have to find out error in this particular sentence, and then after I will be able to answer the question. I am sure you would have tried well to find out the error, and the correct answer is, since this sentence is in past tense, चूँकि ये sentence past में है, pointed out यानी past में point out किया गया था, that's why we are not allowed to use is over here. Rather we should replace this is with was. The correct answer will be, the bench pointed out that closing route of entry for women to join army was discriminatory. First common error is over. Now the second one. Despite of the astringent verdict, astringent means what? Hard, kathor, systemic issues remain in the army. Women have gone back to court to sort out the issues. This common error is very easy. The sentence you can understand well, and the correct answer is, as we all know that despite does not take any preposition with it, that's why of should not be used. Hence error is in part 1. डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा, डिस्पाइट होगा, क्योंकि ऑफ का यूज़ हम लोग या फिर कोई भी प्रेपोजिशन का यूज़ डिस्पाइट के साथ नहीं करते हैं. वहीं अगर इंस्पाइट होता तो यहाँ पे आपको ऑफ लगाना पड़ता. तो इंस्पाइट के साथ आपको ऑफ लगा देना होता है, बट डिस्पाइट के साथ नहीं लगता है. आइए बात करें अगले सेंटेंस की. तो नेक्स्ट सेंटेंस में है, द डायरेक्टिव अलाउज गर्ल्स हु क्लियर्स द एग्ज़ाम टू स्टडी एट द NDA and then at the IMA or the Naval and Air Force academies and become commissioned officer. Now you will have to find the error, and the error lies in sentence part 1, and the correct answer is, as we can see that the directive means होता है घोषणा, फाइन, अनाउंसमेंट कर सकते हो. Allows girls, there you will find girls. Girls is plural noun. In such a condition, if there is WHO, that is WHO, not World Health Organization, WHO, this is called relative pronoun, and we use verb according to the word which comes before relative pronoun. Before WHO you can find that there are girls, and for girls you will use clear, not clears. I think you would have learnt what I taught you regarding this common errors. Now come to the editorial. The title of the editorial is, you can see, Arms and the Women. Arms, as we all know that it is armory, that is hathiyar, and women, aurat. Now question comes, why we are going to study this editorial, and the reason behind it is, we have found a verdict or a ruling of the Supreme Court that even women of this country will be allowed to take examination of NDA and will be part of NDA. Earlier there was no provision for girls to be the part of NDA. Now in February there was a ruling according to that even girls can also be the part of NDA examination. Now let's understand this एडिटोरियल इन हिंदी. अब हिंदी में इसको समझते हैं. नाउ यू कैन सी दैट आर्म्स एंड विमेंस, शस्त्र, और यहाँ पे औरत जाति की बात हो रही है पूरी. ऑन जेंडर पैरिटी, द वर्ड पैरिटी स्टैंड्स फॉर इक्वलिटी, यानी लैंगिक समानता जिसको बोलते हैं. जेंडर इक्वलिटी या फिर जेंडर पैरिटी दोनों एक ही शब्द होते हैं. जेंडर पैरिटी बोलो या फिर जेंडर इक्वलिटी बोलो, जिसको बोलते हैं लैंगिक समानता, जिसमें मैन और विमेन जो भी हैं उनके बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता है, यानी मेल और फीमेल इक्वली ट्रीट किए जाते हैं समाज में, उसको बोलते हैं जेंडर पैरिटी और जेंडर इक्वलिटी. नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. जेंडर पैरिटी इन द आर्मी इज़ हैपनिंग एट अ स्लो पेस. अगर हम लोग
लैंगिक समानता की बात करें, जेंडर इक्वलिटी की बात करें, तो आर्मी के जो सेक्टर्स हैं वहाँ पे बहुत ही स्लो रफ्तार से हो रहा है, यानी ज़्यादा तेज़ी से इसमें काम नहीं हो रहा है। एंड इज़ मोस्टली लेड बाय द कोर्ट्स, और इसमें ज़्यादातर जो कार्य किए जा रहे हैं वो किसके नेतृत्व में हो रहे हैं? कोर्ट्स के नेतृत्व में, यानी कोर्ट इसमें भूमिका निभा रही है, न कि सरकारें भी इसमें भूमिका निभा रही है। यानी कहना यह है कि जेंडर पैरिटी आर्मी के अगर क्षेत्र में बात करें तो बहुत ही स्लो रफ्तार से चल रहा है, और ज़्यादातर जो भी कुछ हो रहा है वो किसके इंटरफेरेंस और किसके द्वारा लीड किया जा रहा है? कोर्ट के द्वारा लीड किया जा रहा है, उसके माध्यम से हो रहा है। अभी भी एक फैसला आया था जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, कि जिसमें औरतों को यह अधिकार होगा कि अब एनडीए में जो लड़कियां भी हैं वो भी एनडीए का एग्ज़ाम दे करके, नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्ज़ाम दे करके उसमें जा सकती हैं। वीमेन हैव बीन फाइटिंग अ टफ एंड अपहिल बैटल। वीमेन हैव बीन फाइटिंग मतलब जो औरतें हैं वो लड़ती रही हैं। अ टफ एंड अपहिल बैटल, अपहिल का मतलब टफ तो समझते हैं कड़ा, अपहिल का मतलब होता है कठिनाई से भरा हुआ। अपहिल टास्क मतलब कठोर, इसको भी कह सकते हैं, यानी डिफ़िकल्ट टास्क। तो डिफ़िकल्ट बैटल लड़ती आई हैं फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन द इंडियन आर्मी। किसके लिए? कि बराबर के अधिकार और अवसर के लिए। कहाँ? इंडियन आर्मी में। यानी इंडियन आर्मी में बराबर के अधिकार और अवसर के लिए औरतें हमेशा से एक कठिनाई भरा युद्ध लड़ती आई हैं। इन अ लैंडमार्क मतलब होता है माइलस्टोन जजमेंट। इन फरवरी 2020 में एक जजमेंट आया था। द सुप्रीम कोर्ट आज द गवर्नमेंट टू अबाइड बाय इट्स ऑन पॉलिसी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को टू अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करना, जिसके लिए दूसरे शब्द क्या लिखे जा सकते हैं? COMPLY, कॉम्प्लाई विद, मीन्स कहता है फॉलो करना, यानी अपने खुद की जो पॉलिसी थी उसको फॉलो करने की नसीहत दी गई थी या कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एंड ग्रांट परमानेंट कमीशन टू वीमेन इन द शॉर्ट सर्विस कमीशन एंड गिव देम कमांड पोस्टिंग्स इन ऑल सर्विसेज अदर दैन कॉम्बैट। उसमें मांग की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सरकार से कि आप अपने पॉलिसी को मानिए, जिसमें कहा गया है कि ग्रांट परमानेंट कमीशन देने की बात हो गई। परमानेंट कमीशन देने की बात का मतलब ये हुआ कि औरतों को तब तक सेवा में रखा जाए जब तक वो सुपर एनुएटेड ना हो जाए, जब तक उनकी एज ना हो जाए रिटायरमेंट की, तब तक। ठीक है, तो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन में भी है। इस क्या होता था, ऐसे शॉर्ट सर्विस कमीशन भी होता है जिसमें 10 साल एक्सटेंड करके 14 ईयर्स किया जाता है, उसके बाद फिर परमानेंट शायद किया जाता है या फिर रिटायरमेंट की घोषणा करनी होती है। तो उसमें कहा गया था कि महिलाओं को भी जो कमांड पोजीशंस है वहाँ पे उसको नियुक्त किया जाए, और हर सर्विसेज में भी उसको नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन एक जगह पे छोड़ करके जहाँ पे कॉम्बैट होता है, यानी युद्ध के क्षेत्र में जहाँ पे लड़ाई सामने से हो, वहाँ पे औरतों को तैनात करने नहीं करना है, ये बात कही गई थी। आगे देखते हैं। इन द सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वर्सेस बबीता पुनिया एंड अदर्स, एक केस हुआ था जो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के और बबीता पुनिया एंड अदर्स के बीच में था। द टॉप कोर्ट यानी जो सुप्रीम कोर्ट है पॉइंटेड आउट दैट, उसने पॉइंट आउट किया है, एक्सप्लेन किया है कि वीमेन हैड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल, यानी जो औरतें हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले की हैं इन द आर्मी में सिंस देयर इंडक्शन इन 1992, जब से वो शुरुआत हुई है। कब से हुई है इसकी? 1992 से, जब से इनका एंट्रेंस हुआ है इसमें, जब से इसमें प्रवेश किए हैं 1992 से, तब से जो औरतें हैं बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल निभाई हैं इस क्षेत्र में। एंड एक्सटेंडिंग परमानेंट कमीशन टू वुमेन SSC ऑफर्स इज अ स्टेप फॉरवर्ड इन रिकॉग्नाइजिंग एंड रियलाइजिंग द राइट ऑफ वुमेन टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द आर्मी एंड एक्सटेंडिंग परमानेंट कमीशन टू वुमेन, और औरतों के लिए परमानेंट कमीशन लाना, ये अपने आप में बतलाता है कि एक अगला कदम है कि उनकी जो फॉरवर्डनेस है उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, पहचानने के लिए। SSC का मतलब होता है
शॉर्ट सर्विस कमीशंस। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में होता क्या है कि इसमें आपको बताया जैसा कि आपको कि 10 साल के तक रहना है और 10 साल के बाद रिटायरमेंट की बात होती है, एक्सटेंशन होती है तो 4 इयर्स का एक्सटेंशन होता है। लेकिन अब जो प्रावधान है उसके अंतर्गत आपको फिर परमानेंट कमीशन में आपको रखा जा सकता है। तो उनके जो एसएससी ऑफिसर्स थे उनके जो काम को देख करके, उनके कंट्रीब्यूशन को देख करके ही अब एक अगला कदम उठाया गया है और उनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज करके ये रियलाइज़ करते हुए कि राइट ऑफ वीमेन टू इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द आर्मी में औरतों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिहाज से उनको भी परमानेंट कमीशन का भाग बनाने की सोचा जा रहा है। आगे पढ़ते हैं। डिस्पाइट द अस्ट्रिंजेंट का मतलब भी होता है कठोर वर्डिक्ट, यानी वैसा वर्डिक्ट जो कठोर होता है ना। तो अस्ट्रिंजेंट वर्डिक्ट सिस्टेमिक इश्यूज रिमेन इन द आर्मी। जो हालांकि जो वर्डिक्ट आया है कोर्ट का वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, सिस्टेमिक जो इश्यूज हैं, जो पहले से चला आ रहा है इश्यूज, वो मुद्दे हैं, रिमेन इन द आर्मी, वो आर्मी में रह ही जाते हैं। एंड वीमेन हैव गॉन बैक टू कोर्ट टू सॉर्ट आउट दिस इशू। और वीमेन जो है फिर से वापस कोर्ट का सहारा लेने के लिए चली गई हैं और इस इशू को सॉल्व करना चाहती हैं। कौन सी इशू की बात हो रही है, सिस्टेमिक इश्यूज जो परंपरागत तरीके से चलता आ रहा है। अनदर स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट women get an equal opportunity as laid down by the constitution has been taken on Wednesday। कहा कि एक और कदम उठाया गया है ये सुनिश्चित करने के लिए। अनदर स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग का मतलब होता है सुनिश्चित करना, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए एक अगला कदम उठाया गया है। ठीक है, और अगला कदम क्या है, एज लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ये अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी किसके द्वारा दिया गया है, हमारे संविधान में भी इसका वर्णन है। हैज़ बिन टेकन ऑन वेंसडे, तो एक अलग नया जो कदम उठाया गया। देखिए यहाँ से जो हो रहा है ना, अनदर स्टेप टुवर्ड्स इंश्योरिंग दैट वुमेन गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, इसका कनेक्शन यहाँ पे है। हैज़ बिन टेकन ऑन वेंसडे यानी नया कदम उठाया गया है सुनिश्चित करने के लिए कि औरतों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। वो इसके लिए कदम उठाया गया है, कब, वेंसडे को। क्या भाई कदम क्या है वो, व्हेन द कोर्ट पास्ड एन इंटरिम ऑर्डर, एक टेम्पररी ऑर्डर, इंटरिम का मतलब क्या होता है, टेम्पररी, एक टेम्पररी ऑर्डर पास किया है अलाउइंग वुमेन टू अपीयर फॉर द नेशनल डिफेंस एकेडमी एंट्रेंस एग्ज़ाम ऑन September 5। 5 सितंबर को एनडीए की एग्ज़ाम होने वाली है। उसके लिए जो भारत की जो औरतें हैं यानी महिलाएं हैं या फिर कह लो जो लड़कियां हैं, अगर वो चाहें तो एनडीए का भी एग्ज़ाम दे सकती हैं। एक नया ऑर्डर पास किया गया है। टिल नाउ, अभी तक की जो प्रावधान थे, वेमेन कुड ज्वाइन द आर्मी थ्रू इंडियन आर्मी एकेडमी, यानी भारत में जो प्रावधान है कि वो कोई भी महिलाएं अगर आर्मी में जाना चाहती है तो IMA के थ्रू जाएंगी, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू जाएंगी, जिसकी स्थापना 1932 में ही हुई थी IMA की, उसके थ्रू। लेकिन एनडीए के थ्रू जो होती है उसके में वो नहीं आ सकते हैं। और एनडीए के बारे में जान लें, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसकी शुरुआत हुई थी 1954 में। और वहीं IMA जो हमारे देश में है 1932 से है। तो औरतें जो हैं बहाल होती हैं मिलिट्री में तो IMA के थ्रू होती हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी के थ्रू होती हैं। आपको एनडीए के थ्रू उनको मौका नहीं मिलता था, लेकिन इस बार ऐसा मौका देने की बात हो रही है कि एनडीए के जो एग्ज़ाम होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसमें वो बैठ सकती हैं। ठीक है। द डायरेक्टिव अलाउज, डायरेक्टिव का मतलब जो होता है घोषणा, जो घोषणा किया गया उसमें अलाउ किया गया है गर्ल्स हु क्लियर द एग्ज़ाम, वैसी लड़कियां जो एग्ज़ाम को क्लियर कर लेती हैं, टू स्टडी एट द एनडीए, वो एनडीए में जा कर के स्टडी कर सकती हैं। एंड देन एट द IMA, और उसके बाद फिर IMA और द नेवल एंड एयरफोर्स एकेडमीज़ में वो जा सकती हैं। एंड बिकम कमीशनड ऑफिसर्स, यानी कमीशनड ऑफिसर्स का मतलब होता है कि परमानेंट ऑफिसर बन सकती है। द डायरेक्टिव इज सब्जेक्ट टू फर्दर ऑर्डर्स। अब ये जो डायरेक्टिव आया है, जो अनाउंसमेंट हुई है, वो एक विषय है। सब्जेक्ट टू का मतलब क्या है, विषय है कि आगे क्या ऑर्डर आता है फ्रॉम द कोर्ट, कोर्ट से आगे क्या ऑर्डर आता है उस पर डिपेंड करता है।
एंड द केस हैज़ बीन पोस्टेड फॉर हियरिंग अगेन ऑन September 8। और फिर से इस केस को सुनवाई करने के लिए एक तारीख निर्धारित की गई है, वो है September 8। व्हेन एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनका नाम है ऐश्वर्या भारती, अपेयरिंग फॉर द गवर्नमेंट एंड द इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी और भारत सरकार के पक्ष रखने के लिए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती प्रस्तुत हुई, अपीयर हुए, टोल्ड द कोर्ट दैट, कोर्ट को उन्होंने बताया कि इट वाज अ पॉलिसी डिसीजन नॉट टू अलाउ वेमेन टू टेक द एनडीए एग्ज़ाम। कहा कि ये नीतिगत फैसला है कि औरतों को एनडीए एग्ज़ाम देने की परमिशन यानी उसको अलाउ नहीं किया जाता है। किसने कहा? सॉलिसिटर जनरल, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भारती ने कहा। अब ऐश्वर्या भारती ने क्या कहा कि ये हमारे यहाँ प्रोविज़न है या प्रावधान कह लो, जिसके अंतर्गत औरतों को अलाउ नहीं होता है एनडीए एग्ज़ाम में बैठने का। द बेंच ऑफ जस्टिसेस संजय किशन कौल एंड ऋषिकेश रॉय, उन्होंने क्या कहा? सेड इट वाज बेस्ड ऑन जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो उन्होंने कहा कि ये जो है जेंडर के नाम पे आप क्या कर रहे हैं, भेदभाव करने जैसा हो गया। डायरेक्टिंग द सेंटर एंड द आर्मी टू टेक अ कंस्ट्रक्टिव व्यूज़, और उन्हें डायरेक्ट किया यानी उनको निर्देशित किया कि आप कोई रचनात्मक व्यू इस पे रखिए, एक कदम उठाइए। द बेंच पॉइंटेड आउट, बेंच ने पॉइंट आउट किया, एक्सप्लेन किया दैट क्लोजिंग अ रूट ऑफ एंट्री फॉर वुमेन, औरतों के लिए रास्ता बंद कर देना, टू कम ऑन टू ज्वाइन द आर्मी, आर्मी के ज्वाइन करने के रास्ते को बंद कर देना, वाज डिस्क्रिमिनेटरी, एक भेदभाव करने जैसा है, यानी किसी के साथ भेदभाव आप नहीं कर सकते। द रूलिंग केम ऑन अ रिट पिटीशन फाइल्ड बाय कुश कालरा सीकिंग परमिशन फॉर वुमेन टू सिट फॉर द एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम। ये रूलिंग यानी फैसला कब आया? जब एक रीट पिटीशन दायर किया गया था, किसके द्वारा? कुश कार्ला के द्वारा, जिसमें उन्होंने मांग की थी, परमिशन मांगा था कि औरतों को भी एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने की अनुमति दी जाए। उसके बाद ये फैसला आया था, यानी कुश कार्ला के द्वारा एक रीट पिटीशन का मतलब होता है कि जब आप फंडामेंटल राइट्स के उल्लंघन के आरोप में अगर किसी के ऊपर कोई केस फाइल करते हो, उसको बोलते हैं रीट पिटीशन। यानी जहां आपको लगता है कि आपके अधिकारों का, मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है जो आपके संविधान में वर्णित है, तो आप रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं। तो कुश कालरा के द्वारा एक रीट पिटीशन दायर किया गया था, जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि जो औरतें हैं देश की, उनको भी मौका मिले एनडीए एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने की। मिस्टर कार्ला आर्ग्यूड दैट, मिस्टर कार्ला ने ये आर्ग्यू किया, यानी अपनी बात रखी, कह लो, समझ लो, और कहा उन्होंने कि आर्टिकल 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which uphold the values of equality and allow equal non-discriminatory opportunity at work। 14, 15, 16 एंड 19, खास करके 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में होता है, बहुत बार न्यूज़ में रहता है। तो 14, 15, 16 और 19 जो हमारा आर्टिकल है, उसके अंतर्गत ये हम लोगों को अधिकार देता है इक्वलिटी का, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, नॉन डिस्क्रिमिनेटरी अपॉर्चुनिटी एट वर्क, काम के क्षेत्र में किसी तरह का भेदभाव ना हो, ऐसा अधिकार हम लोगों को प्रदान करता है। कौन? 14, 15, 16 एंड 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आर्टिकल्स है वो। वर बीइंग वायलेटेड बाय द डिनाइंग एलिजिबल वुमेन द अपॉर्चुनिटी, डिनाइंग है यानी ऐसा करके उनके जो अधिकार हैं, जो एलिजिबल वुमेन हैं, उनके अधिकार के यानी अपॉर्चुनिटी को क्या किया जा रहा है? वायलेट किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है, उनको करने से रोका जा रहा है। दो द लीगल रूट हैज़ हेल्प्ड ओवरकम सम ऑफ द हर्डल्स, हालांकि कुछ जो कानूनी रूट है, लीगल मतलब कानूनी रास्ता है, उसने हेल्प किया है इस हर्डल्स यानी जो परेशानी है उससे ओवरकम करने में, काबू पाने में। इट विल बी अ लॉन्ग हॉल, यानी इट विल बी डिफ़िकल्ट वर्क बिफोर जेंडर पैरिटी इज़ फुली अचीव्ड। ये बहुत ही कठिन कार्य होगा। लॉन्ग हॉल का मतलब होता है कठिन। कब तक? जब तक जेंडर पैरिटी पूरी तरह से अचीव नहीं किया जाता है इन द आर्मी, यानी आर्मी में जब तक लैंगिक समानता नहीं आएगी तब तक ये जो करना, जो काम ऊपर में कही गई है, वो थोड़ा टफ होगा। इन द कॉन्टेक्स्ट, इस लिहाज से द प्राइम मिनिस्टर्स इंडिपेंडेंस डे अनाउंसमेंट, यानी इस संदर्भ में
जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो इंडिपेंडेंस डे पे अनाउंसमेंट हुई थी, दैट गर्ल्स विल बी ग्रांटेड एडमिशन इन द सैनिक स्कूल्स, लड़कियों को भी सैनिक स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, इज अ वेलकम मूव, एक तरह स्वागत योग्य जो कदम है, टुवर्ड्स प्रिपेयरिंग देम फॉर एन इक्वल रोल, किस और कि उन्हें भी प्रिपेयर कर सकें इक्वल रोल के लिए जैसा कि लड़के करते हैं, एंड लाइफ इन द मिलिट्री, और मिलिट्री में जो लाइफ है उसके लिए समान रूप से उनको भी क्या किया जा सके, नर्चर या प्रिपेयर किया जा सके। तो इस तरह से सैनिक स्कूल्स की बात करें तो सैनिक स्कूल जैसा इसका नाम है, तो उसकी जो रूटीन होती है, दिनचर्या होती है, करिकुलम होती है, सारे सैनिक विद्यालय के मापदंड पे होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सैनिक स्कूल्स की बात करें इंडिया में तो 33 हैं, और बिहार में 2 सैनिक स्कूल्स हैं। ज़्यादा अगर देखें तो यूपी में 3 सैनिक स्कूल्स हैं। सैनिक स्कूल का जो आइडिया आया था वो सबसे पहले एक 1957 से 1962 तक, अप्रैल 1957 से लेकर के अक्टूबर 1962 तक भारत के डिफेंस मिनिस्टर रहे, यानी जो रक्षा मंत्री रहे, उनका नाम था वीके कृष्ण मेनन। तो वीके कृष्ण मेनन के दिमाग में सबसे पहले ये बात आई थी सैनिक स्कूल के बारे में, और करीब 60s में यानी 61 या 61 में ही उन्होंने इस्टेब्लिश की थी सैनिक स्कूल, यानी ये आइडिया को पटल पे लाने की कोशिश की। यानी उनके आइडिया तो पहले ही आया था 1-2 साल पहले जब वो रक्षा मंत्री थे, लेकिन रक्षा मंत्री रहते हुए ही उन्होंने ऐसा कार्य किया, और 1961 में सैनिक स्कूल की स्थापना हुई थी, जहाँ तक इतिहास की बात है इसकी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए।